Dear children, in the story, he is my brother from class 3rd English NCERT. We have seen about a young girl, Meena, who carries her brother on her back to visit a holy place nearby. She loves her brother dearly and carries him on her back as he cannot walk. Now, let us see the assignments of this story. New words: understand, climbed, holy, slowly, sorry, load. Write down these new words 2 times in your English copy. Now the word meanings and example sentences. Understand means to know the meaning of. Example sentences: she did not understand the chapter. I cannot understand my best friend. Next word is climb. To go upward. Example sentences: she climbed the stairs easily. John climbed the ladder carefully. Third one is holy. Holy means pure or blessed. Example sentences: Ganga is holy river. Bible is a holy book. Next word is slowly. Slowly means at a very less speed. Example sentences: the tortoise walks very slowly. He rides slowly in the class. Next word is sorry. To feel bad about something. Example sentences: I felt sorry for the old lady. You should be sorry for what you have done. Next word is load. Load means a heavy weight. Example sentences: carry the load on your back. Next sentence is: do not load yourself with so many books. So complete this work in your English copy. Now the question answers. Question 1 is: where were the people going? वो लोग कहाँ पे जा रहे थे? Answer is: the people were climbing a small hill to visit a holy place nearby. तो वो लोग कहाँ जा रहे थे? चट्टान पार करके चढ़कर वो एक धार्मिक स्थान पर जा रहे थे, एक होली प्लेस पे जा रहे थे जो पास में ही था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज: व्हाट डिड द मैन से टू मीना? उस आदमी ने मीना से क्या कहा? आंसर इज: द मैन इंक्वायर्ड टू मीना व्हाई शी वाज कैरिंग द लोड ऑफ अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक. उस आदमी ने मीना से ये पूछा कि क्यों वो इस बच्चे का बोझ अपनी पीठ पर लाद कर लेकर जा रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाई डू यू थिंक मीना वाज कैरिंग हर ब्रदर? मीना अपने भाई को क्यों लेकर जा रही थी, इस बारे में आप क्या सोचते हो? आंसर इज: मीना वाज कैरिंग हर ब्रदर ऑन हर बैक बिकॉज ही वाज अनेबल टू वॉक एंड शी लव्ड हिम वेरी मच. मीना अपने भाई को अपने पीठ पर लादकर इसलिए लेके जा रही थी क्योंकि उसका जो भाई है वो बहुत ही छोटा था और वो चल नहीं पाता था. छोटा होने की वजह से, है ना, जब हम छोटे थे तब हम भी चल नहीं पाते थे और वो अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए मीना उसको अपने पीठ पर लाद कर लेकर जा रही थी. नाउ टॉक टाइम. क्वेश्चन 1, चूज द करेक्ट आंसर. आपको करेक्ट आंसर चूज करना है. क्वेश्चन 1 इज: व्हाट वेंट अप द हिल? व्हाट विल बी द आंसर? अ पाथ और अ स्ट्रीट और अ रोड और अ रेल लाइन. तो हिल से क्या जा रहा था, क्या गुजर रहा था? Yes, you are right. A path. Answer will be A option, a path. Next question is: what is the name? उस बच्ची का नाम क्या था स्टोरी में? सीमा, बीना, मीना और नीना? Yes, answer is Meena. The name of that girl is Meena. Next question: how old was Meena? मीना कितने साल की थी? 10, 12, 9 or 8? Yes, B option is right. 12 years old. Next question: how old was Meena's brother? मीना का भाई कितने साल का था? 5, 4, 6 or 7? B option is right. Meena's brother was 4 years old. Now the next question: fill in the blanks using the correct given words. Words are given here: rat, ship, box, rug, cot, den, pit. तो यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, उसमें से आपको करेक्ट वर्ड चूज करके फिल अप्स कंप्लीट करने हैं. नंबर 1, द बॉय फेल इन द डैश.
Second one is I dash hot milk. Third is the kid is in the dash. Fourth is my toy is in the dash. Fifth is the lion is in the dash. Sixth one is the cat runs after the dash. Seventh one is I sit on the dash. तो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनमें से आपको कौन से सही वर्ड से उनको सही जगह पे लिखना है. So the answers are the boy fell in the pit. I sip hot milk. The kid is in the cot. My toy is in the box. The lion is in the den. The cat runs after the rat. I sit on the rug. तो नंबर 1 पे क्या है आंसर पिट. सेकंड पे क्या है सिप. थर्ड पे क्या है कॉट. फोर्थ पे क्या है बॉक्स. फिफ्थ वन इज डेन. सिक्स्थ वन इज रैट एंड लास्ट वन इज रग. Now the next question, fill in the blanks with the opposite of the underlined word given in the sentence. आपको कुछ sentences दिए गए हैं और कुछ words के नीचे underline किया है, उसका opposite word आपको लिखना है. The rat ran in when the cat ran. तो in के नीचे underline है तो in का opposite word क्या होगा out. The lion is big but the ant is. तो big के नीचे underline है तो big का opposite word क्या हो जाएगा small. नेक्स्ट इज द जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक बट आउल्स आर. तो लॉन्ग के नीचे अंडरलाइन है तो लॉन्ग का अपोजिट क्या हो जाएगा शॉर्ट. द सन अपीयर्स इन द डे एंड द मून एट. डे का अपोजिट क्या होगा नाइट. द टी इज हॉट बट द वाटर इज. हॉट का अपोजिट क्या हो जाएगा कोल्ड. ट्रीज आर टॉल बट द बुशेस आर. तो टॉल का अपोजिट क्या हो जाएगा शॉर्ट. राम वॉज सैड बट राधा वॉज. तो सैड का अपोजिट क्या हो जाएगा हैप्पी. तो इसी तरह से आपको अपोजिट वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं. इन का अपोजिट है आउट. बिग का अपोजिट है स्मॉल. लॉन्ग का अपोजिट है शॉर्ट. डे का अपोजिट है नाइट. हॉट का अपोजिट है कोल्ड. टॉल का अपोजिट है शॉर्ट एंड सैड का अपोजिट है हैप्पी. तो आपको ये सारे अपोजिट वर्ड्स लर्न करने हैं. ओके. Now tea time. Question 1. What are the difficulties that a child who can't see will face? Answer is some of the difficult that a child who can't see is likely to face the following are. इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जिस बच्चे को दिखाई नहीं देता उस बच्चे को कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, वो क्या क्या चीजें नहीं कर पाता है. यहाँ पे आपको ये आंसर लिखना है. तो चलो देखते हैं कौन सी वो डिफिकल्टीज है. नंबर 1, ही विल नॉट बी एबल टू क्रॉस द रोड ऑन हिज ओन. वो खुद से रोड को क्रॉस नहीं कर पाएगा. जब क्यों नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता है. नेक्स्ट इज ही विल नॉट बी एबल टू प्ले गेम्स विद अदर चिल्ड्रन ऑफ हिज एज ग्रुप. ही विल नॉट बी एबल टू वॉच टेलीविजन और मूवीज. वो टेलीविजन या मूवी नहीं देख पाएगा. वो अपने एज के ग्रुप के बच्चों के साथ खेल नहीं पाएगा. He will not be able to play computer games or study with the help of a computer. वो कंप्यूटर पे भी गेम्स नहीं खेल पाएगा या कंप्यूटर पे पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता है. तो जिनको दिखाई नहीं देता उन बच्चों को इन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है. नेक्स्ट इज वुड यू हेल्प अ चाइल्ड हु कांट वॉक टू स्कूल. क्या आप ऐसे बच्चे की हेल्प करना चाहोगे, करोगे कि जो स्कूल नहीं जा पा रहा है, चल नहीं पा रहा है. Answer is yes, of course. I would always help a child who is facing difficulty in walking to school. हाँ, मैं हमेशा ही हेल्प करना चाहूँगा ऐसे बच्चे की जो पैदल चलने में असमर्थ है या उसको कोई प्रॉब्लम है. नेक्स्ट इज हाउ कैन यू हेल्प सच अ चाइल्ड एंड मेक द चाइल्ड फील वन ऑफ यू. तो किस तरह से आप ऐसे बच्चे की हेल्प करोगे और उसको किस तरह से ये फील होगा कि आप जो है उसकी हेल्प करना चाहते हो. So the answer is I would talk to him like a friend. मैं उसको as a friend बात करूँगा and support him as much as I can to make him feel as one of us. I would crack jokes with him so that we can enjoy laughing together. I would introduce him to all my friends as well.
मैं उसके साथ मजाक करूँगा जिससे हम दोनों खूब हंसेंगे, एक दूसरे के साथ एंजॉय करेंगे और मैं उसको पूरी तरह से सपोर्ट दूंगा जिससे उसे लोनलीनेस फील ना हो और उसे ये लगे कि मैं उसके जैसा ही हूँ, उसका अपना ही हूँ। I would introduce him to all my friends as well. मैं अपने सारे फ्रेंड्स के साथ उसे इंट्रोड्यूस करूँगा, मतलब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ उसे मिलवाऊंगा जिससे वो बहुत अच्छा फील करेगा। Complete this work in your English copy. Okay students, bye. Thanks for watching.